नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में आज दार्जिलिंग जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें प्रमुख रूप से उपस्थित रहे उत्तर बंगाल के लिए कोरोना परिस्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ओएसडी डॉक्टर सुशांत रॉय। इसके अलावा उपस्थित रहे दार्जिलिंग जिला शासक एस पन्नोबलम के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित रहे थे। आज के इस बैठक में एक कमेटी का भी गठन किया गया, जो यहां देखेगी आखिरकार क्यों कोरोना वायरस मरीजों की मौतें हो रही है। इस बैठक में गैस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरोसर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, साइकियाट्रिस्ट समेत 8 लोगों की एक टीम गठित की गई। ज्ञात हो कि कावाखाल स्थित कोविड अस्पताल में एक के बाद एक कर कुल 8 लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग सख्ते में आ गया है, जिसके फलस्वरूप इस विशेष कमेटी का गठन किया गया। साथ ही यहां भी निर्णय लिया गया है कि अगर कोरोना से मुकाबले के लिए जरूरत पड़ी तो निजी अस्पताल के डॉक्टरों की मदद भी ली जाएगी। कॉन्टैक्ट बोले পরের দিনই টেস্ট করতে হবে বলে কোনো নিয়ম নেই, ঠিক আছে? ওটা করারও উচিত নেই, ঠিক আছে? ওটা একটা ইনকিউবেশন পিরিয়ড থাকে, ওই পিরিয়ডের মধ্যে করলে রেজাল্ট ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে। আর একদিনে আমরা সবাইকে টেস্ট করে নিতে পারবো এটা ইনফ্রাস্ট্রাকচারও আমাদের মানে নাই। তো আমরা পজিটিভ হয়ে গেলে তার 5 দিন 7 দিনের মধ্যে আমরা সবাইকে টেস্ট করে নেব, করে নিয়ে তার পরবর্তী স্টেপ নিয়ে নেব। একদিনে টেস্ট না হলে এটা কমপ্লেন হিসাবে করা এটা ঠিক নাই, ঠিক আছে? এই কথাটা সত্যি নয়। যেটা হচ্ছে যে বাড়ির কথা বলছেন সেখানে 4 জন পজিটিভ কেস ছিল। একজন বয়স্ক মহিলা, 84 বছর বয়স, তার টেস্ট হয়নি, কোনো কারণে হয়তো টেস্ট ওই দিনকে করা যায়নি, সবাইকে তো একসঙ্গে করা যায় না। তো 4 জন পজিটিভ ছিল, সেই 4 জনকে নিয়ে আসা হয়েছে কাউকে রাত্রিবেলা। আর যার করা হয়নি তিনি বাড়িতে আছেন, তাকে যখনই সুযোগ হবে তখন তাকে নিশ্চয়ই টেস্ট করা হবে। টেস্ট করে কী রিপোর্ট আসবে তার উপর বেস করে কাজ করা হবে। তো খবর নিয়ে দেখবো। তবে একটা জিনিস যেটা মানে আপনি পজিটিভ যে কেউ হতে পারে, আপনি হতে পারেন, আমি হতে পারি, যে কেউ হতে পারে, সেটা ওটা নিয়ে অত অশান্তির কিছু নেই। আইসিএমআর গাইডলাইন আমাদের যেটা আছে খুব পরিষ্কার ভাষায় যে সিমটমেটিক কেসেরই শুধুমাত্র সোয়াব টেস্ট করা হবে, যেটা খুব ক্লিয়ার। অ্যাসিমটমেটিকতে করা হবে না, প্রাইমারি কন্ট্যাক্ট যারা আছেন তাদেরকে করা হবে আরটিপিসিআর। এটা সরকারি নির্দেশ, তো আপনি সেখান থেকে জিজ্ঞেস করে নেবেন। তবে আমার মনে হয় তারা তো অনেক চিন্তাভাবনা করেই করেছেন। সঠিক হেলথ ওয়ার্কারদের প্রোটেকশনের জন্য আমরা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে সমস্ত রকম প্রোটেকশন নেওয়া আছে। এর মধ্যে অনেকে আছে যারা একটু হয়তো ক্যাজুয়াল হয়ে গেছে, খুব তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে গিয়ে তারা অ্যাফেক্টেড হচ্ছেন। ইনিশিয়ালি আমি জলপাইগুড়ির কথা বলতে পারি, যেমন জলপাইগুড়িতে দেখেছিলাম ইনিশিয়ালি 2-4 জন নার্সিং স্টাফ অ্যাফেক্টেড হচ্ছিলেন। আমরা তাদেরকে আবার অ্যাওয়ার করেছি, এখন কিন্তু ওখানে সেই সমস্যাটা নেই। যেটা মেডিকেল সমস্যা, যদি মিরিকে যে সমস্যাটা বলছেন এটাও ওখানে ডেফিনেটলি তার নেবেন, ওনারা দায়িত্ব নেবেন, সেগুলোকে আবার অ্যাওয়ার করার জন্য। ওটা একটা প্রাইমারি কন্ট্যাক্ট, ওরা একটা অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার হয়েছিল, অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার থেকে প্রাইমারি কন্ট্যাক্ট। তো সেই জায়গাগুলোকে যথেষ্ট খেয়াল রাখা হয়েছে। তবে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে ওই পার্টিকুলারলি যারা ধরুন প্রচুর লোকজনের মধ্যে ঘুরে বেড়ান, বিভিন্ন রকম আন্দোলন করেন বা কিছু। पहाड़ी क्षेत्र मिरिक में स्वास्थ्यकर्मी फ्रंटलाइन वॉरियर्स कोरोना की चपेट में। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल, उत्तर बंगाल एवं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर मिरिक में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इस बार मिरिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत फ्रंटलाइन वॉरियर्स कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से एक डॉक्टर, 2 नर्सेज और एक ग्रुप डी स्टाफ रहे हैं। उन सभी के सैंपल जांच के लिए सिलीगुड़ी में स्थित उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भेजा गया था, जो पॉजिटिव पाई गई है। इस बीच उन सभी को सिलीगुड़ी में स्थित कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। इस बीच मिरिक में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने के मद्देनजर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। इस बीच आज एक प्रशासनिक बैठक भी संपन्न की गई, जिसमें मिरिक नगर पालिका के अध्यक्ष एलबी राय, महकुमा शासक अश्विनी कुमार रॉय, नगर पार्षद बेनेता रॉय एवं पूनम विश्वा रही थी। उक्त बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर निर्णय भी लिया गया कि मिरिक बाजार को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस विषय पर अधिक जानकारी मिरिक महकुमा शासक अश्विनी कुमार रॉय ने दी है। जुन चाहिँ लगातार जुन चाहिँ अब कोरोनाको मतलब एउटा नेगेटिभ रिपोर्ट आउँदैछ होइन, यसले गर्दाखेरि मिरिकलाई अब हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। आज मतलब कृष्णको मार्चेन्ससँग र बजारको मार्चेन्ससँग लिएर
र उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूको पनि एउटा भनाइ मतलब एउटै थियो कि मतलब मिरिकलाई सेफ्टी राख्नुपर्छ, मिरिकलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरो। यसको लागि उहाँहरूसँग आज हामीले मिटिङ बसेको छौँ र म उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर 7 दिनको लागि चाहिँ मतलब दोकानपाट टोटली मतलब मिरिकमा बन्द गर्ने र गाडीवालाहरूलाई पनि हामी अपिल गर्छौँ, यहाँ तपाईँको माध्यम च्यानलले अपिल गर्छौँ गाडीहरू पनि नकुदाइदिने एउटा अपिल गरेको हुन्छौँ। र विशेष गरी जुन चाहिँ 7 दिनको भित्रमा सिलगढीदेखि कुनै पनि सरसामानहरू नल्याइदिने, किनभने 7 दिनभित्रमा यहाँ मान्छेको हाम्रो मतलब सब्जीहरू त मतलब हाम्रो बारीतिर पनि अहिले बर्खा मास लाग्यो, बारीतिर पनि छँदैछ र कुनै पनि एउटा फुटपाथ एउटा मिरिकलाई एउटा हामीले जोगाउनु लागि एउटा प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दाखेरि मार्चेन्ट एसोसिएसनले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु भएको छ र कृष्णहरूको मार्चेन्ट एसोसिएसनले पनि एउटा आफ्नो जिम्मेवारी सबैजना मिलेर चाहिँ मतलब मिरिक एउटा जोगाएर राखौँ र यसलाई हामीले अपिल गर्नु त। विशेष गरी यहाँनिर आज मिटिङमा के एउटा कुरा आयो भन्दाखेरि मिरिकमा हेर्नुहोस् धेरै कर्मचारीहरू बाहिरबाट आएर काम कुरो गर्ने गर्छन् र उहाँहरूलाई मतलब काम कुरो गर्नु लागि हामीले रोकेको छौँ। तर एउटा के भन्दाखेरि रुल्स र एउटा मतलब डिस्टेन्स मेन्टेन भन्ने कुरो सबै कुरो हुनु पऱ्यो र उहाँहरूलाई पनि हामी अपिल गर्छौँ उहाँहरू मतलब एकै घरतिर नगइदिएर मिरिकमै बसेर काम कुरो गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। किनभने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अफिसियल कर्मचारीहरू उहाँहरूलाई हामीहरू नआइज यहाँ काम नगर त भनेको छौँ न र उहाँहरू जुन चाहिँ घरमा बसेको छ त्यही घरमा रेन्ट लिएर बस्यो भने एउटा राम्रो हुन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि कतिवटा कुरो मतलब मिरिकलाई एउटा सुरक्षित राख्नु लागि उहाँहरू सबैलाई हामीहरू एसटी साहब हामीहरू म्युनिसिपालिटीको तर्फबाट हामी सबैको थानाको तर्फबाट हामी अपिल गर्छौँ एउटा मिरिकलाई चाहिँ मतलब एउटा राम्रोसँग राखौँ र जुन किसिमले यहाँ हाम्रो गाडी घोडाहरू चल्छ अनावश्यक गाडी घोडाहरू नचलाइदियोस् र सिलगढीमा अनावश्यक कामले गरेर नजाओस्। मतलब धेरै मतलब उसहरू छ अब दोकानको मतलब कम्प्लेनहरू छ कि मतलब सिलगढी जाँदै आउँदै गर्छ त्यसलाई हामीले कसरी रोक्नु भन्ने कुरो र हामीले तपाईँहरूको माध्यमद्वारा अपिल गर्छौँ उहाँहरू मतलब एउटा मिरिकमा आज मार्चेन्ट एसोसिएसनले र कृष्णहरूको मार्चेन्ट एसोसिएसनले हामीले एउटा जो डिसिसन लिएको छौँ त्यो एउटा सामाजिक डिसिसन एउटा समाजको डिसिसन लिएर मानिदिने र मिरिक साउन्डिङ इलाकामा कतिवटा सानोतिनो दोकानहरू होला त्यो पसलहरू त्यो पनि उहाँहरूले मतलब खुल्लासँग नराखिदिने हामी सबैलाई एउटा अपिल गरेर। बांग्लादेश ढाका मेडिकल कॉलेज नामक अस्पताल में पिछले 1 जून से 24 जून के बीच कोरोना संक्रमण को लेकर भर्ती 403 लोगों की मृत्यु हो गई है। इनमें से 111 लोगों के कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 292 लोगों में कोरोना के लक्षण को लेकर भर्ती कराया गया था। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के उप परिचालक डॉक्टर अलाउद्दीन आल आजाद ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मृतकों को सरकारी नियम अनुसार कोविड-19 बैग में भरकर परिवार वालों को सौंप दिया गया है। साइकिल को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की गई जान। हाथीकीसा ग्राम पंचायत अंतर्गत विजयनगर इलाके के निवासी चाचा और भतीजे के बीच साइकिल को लेकर विवाद शुरू हो गया और बाद में दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट की घटना में 45 वर्षीय चाचा कमल नायक की मौत हो गई है, जबकि भतीजा नानुक नायक फरार है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। সে আমি ওই এলাকার পঞ্চায়েত মেম্বার, তো আমি 8টার সময় ফোন পাইলাম, আমি জীবিত ছিলাম গ্রাম পঞ্চায়েতে, তো ফোন পাইলাম কি এখানে কাকা ভাস্তা মারামারি হয়েছে। তো মারামারি হয়েছে আমি ফোন করলাম এনবিটি হসপিটাল নিয়ে আসা পুরো সিরিয়াস আছে। যখন আমি হসপিটালে বাইক নিয়ে হসপিটালে যখন আসি তো সত্যি যখন হসপিটালে ভর্তি হওয়ার আগে তো অজ্ঞান হয়ে গেছে, তারপরে কোনোরকম তুলে হসপিটালে নেওয়া হয়েছে, দেখে হসপিটালে বাস ওইখানে মরে গেছে আর কি। ও যে মারছে হচ্ছে ননকুন নায়ক, নিজের কাকা হয়, এক বাড়িতে থাকে, পাশাপাশি বাড়িতে থাকে। একটু সাইকেল নিয়ে গেল, ওদের দুজন মানে একটা ক্যাচাল ছিল, ও ঝগড়া হতে হতে বাস দিয়ে আমার লাঠি দিয়ে ওকে মেরে মানে মাথাতে মেরেছে, গায়ে মেরেছে, বাস হাসপাতালে আস্তে আস্তে मारा গেছে। ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच सीधी टक्कर में युवक की मौत। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाने के बारदुआरी बाजार इलाके में बृहस्पतिवार दोपहर को ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच सीधी टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक की शिनाख्त कमाल हुसैन के रूप में की गई है। वहाँ हरिश्चंद्रपुर थाने के दौलत नगर इलाके का रहने वाला था। आज दोपहर वहाँ हरिश्चंद्रपुर से मोटरसाइकिल से बारदुआरी जा रहा था। रास्ते में विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उसे सीधी टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बदहाल सड़क को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर प्रदर्शन भी किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को काबू किया गया। ঘটনাটা হচ্ছে যে এই যে থানা মোড় থেকে ব্লক অফিস যাওয়ার রাস্তা এত মানে মনে হচ্ছে পুকুর না ধানের জমি সেটা বোঝা যায় না। অনবরত এখানে ছোট বড় অ্যাক্সিডেন্ট দৈনিক লেগে আছে। এটা পিডব্লিউডির রাস্তা, কিন্তু কোনো রাস্তা নির্মাণের কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই। এখন এই ট্রাক্টরের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে স্পট ডেথ হয়েছে। দেখেন এখানে মার্কেট লাগে, অথচ দেখেন রাস্তার অবস্থা ভয়ানক খারাপ। ট্রাক্টর হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে বারদুয়ারির দিকে যাচ্ছিল আর মোটরসাইকেলও বারদুয়ারির দিকে যাচ্ছিল।
पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि पिछले 2 सप्ताह से ज्यादा समय से जारी है। कई शहरों में तो डीजल का दाम पेट्रोल से भी ज्यादा हो गया है। ऐसे में महंगाई बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। आम आदमी कोरोना के कहर से पहले ही परेशान है, इसलिए डीवाईएफआई की ओर से सिलीगुड़ी के हैदरपाड़ा में बुधवार रात को विरोध प्रदर्शन किया गया। डीवाईएफआई के सदस्यों ने बताया कि लॉकडाउन के चलते पहले ही लोगों की अवस्था काफी खराब हो चुकी है और ऊपर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई है। আজকের যে বিষয় মানে একদিকে যেমন সারা দেশে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক আর একদিকে লকডাউনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কোনো ইনকাম নেই, কাজ নেই, কর্ম নেই, সাধারণ মানুষ খুব অসহায়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এইরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম 17 দিন ধরে পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারটা কাদের সরকার এই প্রশ্নটা কিন্তু উঠতে শুরু করেছে। আমরা চাইছি যে অবিলম্বে পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস করা হোক, কারণ পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়া মানেই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়া। সাধারণ মানুষের কথা কেন্দ্রীয় সরকার ভাবছে না। তাই আমাদের দাবি অবিলম্বে পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি যে ঘটেছে তা হ্রাস করুক। আমরা এই দাবি নিয়ে আজ আমরা রাস্তায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমরা এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেমেছি। এই আন্দোলন আমাদের চলবে, কারণ আমরা চাইছি পেট্রোল ডিজেলের দাম অবিলম্বে কমুক। সাধারণ মানুষের হাতে টাকা পয়সা নেই, সাধারণ মানুষের কাজ নেই, খুব অসহায়ের মধ্যে তারা দিন কাটাচ্ছে। এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 17 দিন ধরে पेट्रोल डीजल मूल्यवृद्धि घटिए चले। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी ये परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 30 किलो गांजा के साथ युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत NGP थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर 30 किलो गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम साइदुल है। वह उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा का रहने वाला है। पुलिस सूत्र के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर NGP थाना अंतर्गत फुलबाड़ी इलाके में सफेद वर्दी में छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा गया है। वहां गांजे के साथ कहीं जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। गुरुवार को उसे जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। मिरिक में हुए सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मिरिक में बुधवार दोपहर के समय हुए एक सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए आज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक लॉरी कल मिरिक के पानी घट्टा में गिर गई थी और इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इस साल के लिए 1 जुलाई से शुरू होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बोर्ड ने इस निर्णय की जानकारी दी है। साथ ही अब बताया है कि किस आधार पर स्टूडेंट्स को अंक दिए जाएंगे और रिजल्ट्स कैसे तैयार किए जाएंगे।
याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीएसई ने 1 से 15 जुलाई को होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ बैठक में बोर्ड के अधिकारियों ने कहा था कि 10वीं कक्षा का इंटरनल असेसमेंट से रिजल्ट तैयार करना आसान है, लेकिन 12वीं कक्षा के मामले में इस तरह रिजल्ट तैयार करने में दिक्कतें आती है, क्योंकि 12वीं कक्षा के आधार पर IIT, मेडिकल समेत कई अन्य उच्च शैक्षिक संस्थानों में दाखिला होता है। स्कूल के इंटरनल असेसमेंट में कई होनहार छात्र भी पीछे हो सकते हैं। इसलिए बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स को 2 विकल्प दिए जाएंगे। उनके स्कूल में हुए पिछली 3 परीक्षाओं में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें कुछ महीने बाद होने वाले इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। स्टूडेंट्स चाहे तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देकर अपना स्कोर बेहतर कर सकेंगे। विधायक खगेश्वर रॉय ने सड़क निर्माण का किया शिलान्यास। विधायक खगेश्वर रॉय ने बृहस्पतिवार को जलपाईगुड़ी के कुकुरजान अंचल की 350 मीटर पक्की सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सड़क निर्माण के लिए उन्होंने अपने विधायक कोष में से 5.5 लाख रुपए आवंटित किया है। इस अवसर पर विधायक खगेश्वर रॉय ने कहा कि सड़क बन जाने से इस इलाके के लोग काफी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग थी, जो अब जाकर पूरी होगी। आज उद्घाटन समारोह में रायगंज ब्लॉक के सभापति लक्ष्य मोहन रॉय, कुकुरजान अंचल के प्रधान मालती रॉय, मानेंद्र रॉय, अंचल के निर्माण सहायक अभिजीत भट्टाचार्य समेत गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। उत्तर दिनाजपुर जिले के प्रथम कोरोना वायरस से संक्रमित हुए 2 प्रवासी श्रमिकों को नहीं मिल रहा है रोजगार। रायगंज के ब्लॉक विकास अधिकारी से लगाई गुहार। उत्तर दिनाजपुर जिले में जब प्रवासी श्रमिकों का आगमन शुरू हुआ था, रायगंज के गौरी और शेरपुर ग्राम पंचायत में आए 2 प्रवासी श्रमिक सर्वप्रथम कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इन लोगों का इलाज किया गया था। अब ये पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन दुखद बात यह है कि पिछले 2 महीने से इन लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। इन लोगों के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। दरअसल कोई भी व्यक्ति इन लोगों को रोजगार नहीं दे रहा है। यही कारण है कि इन लोगों ने रायगंज ब्लॉक समष्टि विकास अधिकारी के समक्ष गुहार लगाई है। विकास अधिकारी राजू लामा ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य सरकार की तरफ से जो नियम निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार ही इन श्रमिकों को काम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों को जल्द से जल्द रोजगार मिल सके, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ভিডিওর সাথে মানে সমস্যা মানে সরকারি কোনো ফ্যাসিলিটি পাচ্ছি না, কি করে বসে বসে খাবো? ওখানে কাজ করছিলাম, বাবা মা কাজ ছিল, আর এখানে তো আমরা কি করে খাবো? এখানে তো বসে আছি বাড়িতে। এই সমস্যা ভিডিও বললো যে কি স্লিপ দিবে 5 কিলো চালের জন্য, দিল। আর মেম্বারে বলেছে আমাদের ওইদিকে, বলছে যে তোমাদের টাকা দেওয়া হবে, এসব রিপোর্ট মানে মেডিকেল কাগজ এসব দিয়ে দাও, জমা দাও, তো সরকার থেকে কোনো ফ্যাসিলিটি পাওয়া যাবে। আমাদের কোনো কিছু ফ্যাসিলিটি পাওয়া যাচ্ছে না। এই জন্যে আমরা ভিডিওর কাছে এসেছিলাম যে কী ব্যাপার এরকম। আর আমার ভাগনা আছে হ্যান্তাবাজের যে দিলশার আলী, ওনার আবার স্লিপ বাড়িতেই চলে গেছে, আমাদের এখনও যাচ্ছে না। এই জন্যে আমরা এখানে ভিডিওর কাছে দেখাবো। भारी बारिश के चलते अलीपुरद्वार जिले के कई इलाके जलमग्न। लगातार हो रही बारिश के कारण अलीपुरद्वार शहर का अधिकतर इलाका जलमग्न हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में अलीपुरद्वार जिले में 290.60 मिलीलीटर, हांसीमारा में 69 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारी बारिश के कारण घरों में पानी घुस गया है। सड़कें पानी में पूरी तरह डूब चुकी है। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। अलीपुरद्वार नगर पालिका के 2, 16, 9, 5, 12 नंबर वार्ड पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोग इसके लिए नगर पालिका के उदासीन रवैये को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरी ओर इस बारे में नगर पालिका के प्रशासक ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वहीं अलीपुरद्वार नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन आशीष दत्ता ने कहा कि जून महीने में पंप चलाए जाने की जरूरत है। पंप नहीं चलाए जाने से पानी शहर से बाहर नहीं निकल रही है। भयावह अग्निकांड में 3 दुकानें जलकर राख, लाखों का नुकसान। अलीपुरद्वार जिले के अलीपुरद्वार चौराहे के पास एक्सिस बैंक के निकट गुरुवार तड़के सुबह भयावह अग्निकांड में 3 दुकानें जलकर राख हो गई। आग लगी की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की 2 इंजन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्राथमिक जांच के बाद आकाशीय बिजली गिरने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आज सुबह स्थानीय लोगों ने इन दुकानों में आग लगते देख दमकल को खबर दी। अलीपुरद्वार टाउन कमेटी व्यवसायी समिति के महासचिव प्रसन्नजीत डे ने बताया कि आग लगी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।